تاریخی اسلام کے واقعات نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ اسے ہم نے مختلف کتب و رسائل اور آرٹیکلز میں پڑھا ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے تحریر کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ اس مضمون میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ قاری ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج پڑھ لے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نائمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کی معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے تو بھی کافر ہے کہ اس میں آیاتی قرآنیہ کا انکار ہے، ورنہ گمراہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایٹ کریمہ سبحان الذی سے بارکنا حولہ تک بیت المقدس تک کی معراج کا ذکر ہے، اور لنریہ من آیاتنا میں آسمانی معراج کا ذکر ہے، اور انہ السمیع البصیر میں لامکانی معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ علامہ مفتی احمد یار خان نائمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنی چچا زاد ہمشیرہ امی ہانی کے گھر سے 27ویں رجب دوشنبہ کی شب کو ہوئی۔ امی ہانی کے گھر سے مسجد حرام تک معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس بارے میں شارح بخاری علامہ محمود عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شاب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا، نبی پاک علیہ السلام گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے جبکہ اب پر اونگ کا اثر تھا۔ شق صدر اور براق پر سواری اللہ کے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حوطیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک اونے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہے۔ مسجد حرام سے نکلنے کے بعد 3 مقامات پر نماز براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے سفر شروع ہوا۔ اس دوران نبی پاک علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کہے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دورانی سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دورانی سفر ایک مقام پر، اور یہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طوری سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دورانی سفر کے چندم شاہدات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور۔ بڑھے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلما یا محمد یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا،
उन्होंने आपको सलाम अर्ज करते हुए कहा, अलस्सलामु अलैका या अव्वलु, अलस्सलामु अलैका या आखिरु, अलस्सलामु अलैका या हाशिरु, यानी ए अव्वल आप पर सलामती हो, ए आखिर आप पर सलामती हो, ए हाशिर आप पर सलामती हो। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, या इनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद मुसलसल 2 जमातों पर गुजर हुआ तो वहां भी ऐसा ही हुआ। बैतुल मुक़द्दस आमद, एक रिवायत में है कि हुजूर अनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाब ईमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांध दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बराक को उसी हलके में बांधा जहां अंबियाए कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकातें पढ़े, फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें मुलाहजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाका लिल फित्रा लौ अखज़तल खम्र गवत उम्मतुक, यानी तमाम तारीफें अल्लाह वजल्ला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। अगर आप अलैहिस्सलाम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में गुमराह हो जाती। मुशाहिदात की तफसील नबी पाक अलैहिस्सलाम बीत अल मुक़द्दस पहुंचने के बाद हजरत जब्राइल ने अर्ज किया, वो बढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे मुलाहजा फरमाया था वह दुनिया थी। इसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी इस बढ़िया की है। जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। चाहता था कि आप उसकी तरफ माइल हो जाएं। जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। अंबियाए कराम की अमामत ये सफर करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए, जहां मस्जिद अक्सी में अंबियाए कराम की अमामत फरमाई। चनांचा नबी पाक अलैहिस्सलाम आते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी अमामत की अंबियाए कराम के खुतबे मस्जिद अक्सी में नमाज के बाद अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम ने खुतबे दिए। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फरमान बरदार बंदा बनाया। मेरी इक्तदा व पैरवी की जाती है, मुझे आग से नजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फिरौन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को नजात अता फरमाई। उनके बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़बूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हुकूमत और फसल खिताब अता फरमाया। उनके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिनों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, और अब ये वो काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ, मसलन बुलंद व बाला मकानात तामीर करना और तस्वीरें बनाना। मुझे परंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पकड़े हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। उनके बाद हजरत सैयदना ऐसी अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला और या अपने इज़्न से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया,
मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पुनः अता फरमाए, जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह नहीं। उन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमाम अल-अंबिया साहब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतबा दिया। खतबे से पहले आपने अनबियाए कराम से फरमाया कि तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं रब की तारीफ व सना बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खतबा पढ़ा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब को नाजिल फरमाया, जिसमें हर शय का रोशन बयान है। मेरी उम्मत को लोगों में जाहिर होने वाली सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरा सेना कुशादा फरमाया, मुझसे ये बूझ को दूर फरमाया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। ये सुनकर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी वजह से मोहम्मद ने तुम पर फजीलत पाई। आसमानों की तरफ सफर यहाँ मस्जिद अक्सी तक के मामलात मुकम्मल हुए। अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चनांचे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले हत्ती कि वो दुनिया के आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जबरील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया मरहबा भी फनामल मजीद जा, यानी इनको खुश आमदीद हो, वो खूब है। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जबरील ने कहा ये अब के वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबन बिअला इब्न सालेह व नबी सालेह, यानी सालेह फर्जंद सालेह नबी, तुम खूब तशरीफ लाए। अपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। जिनती व जहनमी अरवाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहजा फरमाया। जब आप अपनी दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जबरील ने अर्ज किया उनके दाएं और बाएं जानिब जो सूरतें हैं ये उनकी औलाद हैं। दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जबरील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए थे कि दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जबरील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा तो क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, तुम बहुत ही अच्छा आना आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां हजरत यही अलैहिस्सलाम और ऐसी अलैहिस्सलाम थे। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यही अलैहिस्सलाम है और ये ऐसी अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम करो। मैंने सलाम किया। उन दोनों ने जवाब दिया सालेह भाई सालेह नबी अब खूब आए। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जबरील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जबरील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम। पूछा गया उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, तुम खूब ही आए। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा सालेह नबी अब खूब आए। उन्हें हुस्न का एक हिस्सा दिया गया। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जबरील मुझे ऊपर ले गए हत्ती कि चौथे आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जबरील हूं। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, अच्छा आना, अब आए। तो दरवाज़ा खोला गया। जब अंदर गए तो वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा सालेह भाई, सालेह नबी। उन्होंने मुझे भी खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए, हत्ती के 5वें आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलवाया। फिर मुझे ऊपर ले गए, हत्ता के 5वें आसमान पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील हूं। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया कि क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुशामदीद आप, अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा मरहबन बिल अख़ सालेह वन नबी सालेह, यानी खुशामदीद ए साले भाई, सालेह नबी। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए, हत्ता के 6ठे आसमान पर पहुंचे, दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील हूं। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुशामदीद आप, अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर पहुंचा तो वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा बिल अख़ सालेह वन नबी सालेह, यानी खुशामदीद ए साले भाई, सालेह नबी। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर की। जब वहां से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया क्या चीज आपको रुला रही है? फरमाया इसलिए कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाए गए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। फिर मुझे 7वें आसमान की तरफ ले गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील हूं। पूछा गा तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुशामदीद आप, बहुत अच्छा आना आए। मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्हें सलाम करें। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबन बिल इब्न सालेही वन नबी सालेह, यानी खूब आए ए सालेह, फर्जंद सालेह नबी। सिदरतुल मुंतहा आसमानों के बाद मजीद कुर्बे खास की तरफ सफर का आगाज हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मिटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब इसे अल्लाह का कोई हुक्म पहुंचता है तो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ कर सके। तो अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई जो वही फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। मैंने पूछा ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज किया कि खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें वो नील और फरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का पियाला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। मकाम इस्तवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तवी कहा जाता है। वहां आपने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। इसके बाद आप बर्राक पर सवार हुए तो उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम के कुर्ब खास में है।
अचानक इस हिजाब से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ये कौन है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, इस जात की कसम जिसने आपको हक से साथ मबूस फरमाया, बतौर मकान के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ता को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक देखा नहीं था। तारीखुल खमीस 1/311। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, मुझसे अलग न हो। अर्ज किया, ए मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है, मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील की इंतहा। हजरत जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता के 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावुज कर गए, जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। तो एक मकाम पर बराक रुक गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफरफ नामी एक सब्ज खेमा मुलाहिजा फरमाया, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुंचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद कुर्बे खास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, हत्ता कि 1000 मर्तबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दना के मकाम पर पहुंचे। फिर मजीद तरक्की करते गए तो फतदल्ली तक पहुंचे। फिर मजीद तरक्की करते गए, हत्ता कि अपनी मंजिल काब कौसैन और अदना तक पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम व मर्तबे के एतबार से था, न कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप वहां पहुंचे जहां न जमा था, न मकाम, न ऊपर था, न नीचे, न शुमाल था, न जुनूब, न मशरिक था और न ही मगरिब, ये सब न थे, बस खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान व हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान, मजीद हमें सोचने और अक्ल दौड़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फरमानबरदारी के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। नमाजों की फर्जियत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर दिन रात 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। वापस आते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरती मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे तो वो अर्ज गुजार हुए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाजें। उस पर हजरती मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, इरजे इलाए रब्बिका फस्अलहु अत-तखफीफ फ़इन्न उम्मतका ला युतीकून ज़ालिका फ़इन्नी क़द बलौतु बनी इसराईला व ख़बरतुहुम। यानी वापस अपने रब अज़्ज़ा वजल के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा कर लिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस रब ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रब्बी खफ़िफ़ अलाए उम्मती, यानी ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर तखफीफ फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 5 नमाजें कम कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस हजरती मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया,
अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने 5 नमाजें कम कर दी हैं। हजरती मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया कि आप अलैहिस्सलाम की उम्मत से ये ना हो सकेगा, वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। ये सिलसिला यूं नहीं चलता रहा कि आप अलैहिस्सलाम रब ताली की बारगाह में हाजिर होते तो वो 5 नमाजें कम फरमा देता, फिर हजरती मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते तो वो और कमी का अर्ज करके वापस रब ताली की बारगाह में भेज देते। हत्ती कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये दिन और रात में ये 5 नमाजें हैं और हर नमाज का सवाब 10 गुना है। इस तरह ये 50 नमाजें हुए। जो नेकी का इरादा करे फिर उसे न करे तो उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाएगी, और अगर कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जो बुराई का इरादा करे फिर उससे बाज रहे तो उसके नामा आमाल में कोई बुराई नहीं लिखी जाएगी, और अगर बुरा काम कर लिया तो 1 बुराई लिखी जाएगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम हजरती मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्हें इस बारे में बताया तो हजरती मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया कि वापस अपने रब अज़्ज़ा वजल्ल के पास जाइए और उससे कमी का सवाल कीजिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब अज़्ज़ा वजल्ल के पास इतनी बार गया हूं कि अब मुझे हया आती है। जन्नत व दोज़ख की सैर। अब अलैहिस्सलाम ने रब ताले के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तहफा लेकर वापसी का सफर शुरू फरमाया। जब अब अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो हजरत जबरील अब के साथ रहे। चनांचा हजरत जबरील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक अब अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चने हुए हैं। अल्लाह पाक ने अब को इस रात व बुलंद मकाम व मर्तबा आता फरमाया जहां तक मखलूक में से न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंचा और न ही कोई नबी, बस ये इज्जत अब ही के लिए है। उसके बाद हजरत जबरील ने अब को जन्नत व दोज़ख की सैर कराई, उनके मनाज ले अब को दिखाए। अपने जन्नत में जिन चीजों को मुलाहजा फरमाया उनमें हौरें, महल्लात, जन्नती गुलाम, सलेश खादम, छोटे बच्चे, दरखत, फल, कलियां, नहरें, बागीचे, फूल, बागात, हौज, कमरे और गैलरियां वगैरह। और जहन्नम में जो मुलाहजा फरमाया वो जंजीरें, हथकड़ियां या तोक, बेड़ियां, सांप, बछो, गड्ढे के रेंगने की तरह की आवाजें, खोलता पानी, जलते धुएं वगैरह। जमीन पर आहा तशरीफ औरी अब अलैहिस्सलाम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को मुलाहजा फरमाया। उसके बाद आसमानों से होते हुए बीतु अल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ हजरत इमहानी के घर तशरीफ लाए जहां से सफर की इब्तिदा हुई थी। चनांचा एक रिवायत में है कि अब अलैहिस्सलाम बीत अल मुक़द्दस तक आए। हजरत जबरील अब के साथ थे। फिर अब वहां से मक्का शरीफ हजरत इमहानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। महराज का ऐलान अब अलैहिस्सलाम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चनांचा एक रिवायत में है कि अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस रात बीत अल मुक़द्दस तक सैर करवाई गई, फिर वहां से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, अपने इस एक रात में बीत अल मुक़द्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं। तो अपने फरमाया, अबू जहल इस खौफ से इनकार न कर सका कि अब यह बात अपनी कौम में बयान करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ये बात अपनी कौम को बताएंगे? अपने फरमाया, हाँ। यह सुनकर अबू जहल ने आवाज लगाई कि ए बनी काब, यहां ओ। तो सब लोग जमा हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बीत अल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि अपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। इनमें बाद ने तालियां बजाएं, बाद हंसने लगे और बाद ने अपने सरों पर हाथ रखा। आस मामले को महाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। इसकी वजह से बाद ईमान वाले मर्तद हो गए, जबकि बाद ने
تصدیق کی۔ یہ تھا واقعہ معراج۔ اسی طرح اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔